ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦਿਆ ਪਾਰ, ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੀਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੇ ਸਭੇ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵ ਜਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਫਬਾਵੇ। ਏਤਿਆਂ ਗੁਣ ਏਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੋ ਉਸ ਇੱਕ ਭਲੇ ਦਾ 1000 ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਇਓ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾਤਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਾਤ ਦਾਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, तो बार बार दा जताना या दीवारां ते लिखना मैं इन्ना दिता, इस गल दा सबूत है ये वपार है। परिपूर्ण परमात्मा पहाड़ा जितनियां दातां झोली दे च पा के तिल जितना भी वो जिक्र नहीं करदा। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत जनाब हाफिज दा कहना है, हे खुदा अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहा तो लगातार 100 साल तक मैं गुनाह ही करने ने।
पाप करने ने। ऐसी भाषा अगर कोई संत बोले हैरानगी होवेगी। फकीर दे मुंह इस तरह दे शब्द निकलन, धार्मिक दुनिया दे लोकां ते कंबड़ी छिड़ेगी। पर वो कह रहे है, सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम कर दे। मैं 100 साल तक जिंदा रहा ते इम्तिहान दे तौर दे ते गुनाह करांगा, पाप करांगा। किहड़े इम्तिहान दे तौर ते? किहदा इम्तिहान लवेंगा? कहंदा खुदा दा इम्तिहान लेना है, रब दा इम्तिहान लेना है। किस गल दा इम्तिहान लेना है? ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। मैं 100 साल गुनाह करके देखना है कि मेरे गुनाह ज्यादा ने या तेरी रहमत ज्यादा है। मैं उन्हों तोलना है तकड़ी ते। ए फकीर कहंदा है, ऐ खुदा, जे मैं अपने 100 साल दे गुनाह कट्ठे करा तां तेरी इतनी वड्डी बख्शिश है, इतनी वड्डी बख्शिश है, मेरे 100 साल दे गुनाह पासकों भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन्ना वड्डा दयालु है, तो इतना वड्डा बख्शिंद है। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने कि वह ऐसा बख्शिंद है कि दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। औगुण भी देखी जाता है, दोख भी देखी जाता है, पर देण वल्लों अपने हथ संकोचदा नहीं। एक कद कमजोरी किसी दी देख लईए, मनुख अपने हत्थां नूं संकोच लैंदा है। पर हजारां तरह दीयां कमजोरियां, खामियां ते गुनाह वेख के भी परमात्मा अपने हथ नहीं संकोचदा। मैं एक गाथा पढ़ी है कि एक 60 साल दा एक चोर एक संत दे द्वार ते गया भिक्षा मंगण। संत ने ताड़ना करके वापस कर दिता, तू चोर है, डाकू है, लोकां नूं परेशान करदा है, बेचैन करदा है। जा, मैं अपने अस्थान तो तेनू लंगर नहीं देना, प्रसाद नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वापस हो जा। चोर वापस हो गया, पर अज संत अजीबो गरीब हालत विच मुब्तला है। अज उसकी समाधि नहीं लग रही, अज उसका मन नाम विच नहीं जुड़ रहा। तो कारण पुछदा है, हे प्रभु, मैथों भुल की हो गई है? अलहाम होया, जिसनू मैं 60 साल तो जिंदा रख रहा ते दे रहा, तो उसनू एक दिन भी नहीं दे सकिया। तो उन्होंने वापस किया, मैं ते 60 सालां विच कदी उसनू वापस नहीं किया। वो तेरे कोल अज आया है, तू वापस किया है। तो गल स्पष्ट हो गई कि अजे तू पूर्ण दया दा पात्र नहीं बनया, और जो दया दे पात्र ने वही मेरे नेड़े ने। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, वो इतना वड्डा दाता है कि तिल जितनी भी बदले विच मंग नहीं रखदा। दात दा मतलब ही हथों छड़ देना, जिसनू हथों छोड़ देना है, दान। दोवां हथां चो जो छड़ दिता है, पर जे उन्हों जताया जा रहा है तो छड़िया नहीं, फिर पकड़ बाकी है। जैसे कि एक महापुरुष की रसना तो बार बार निकल रहा सी किसी महफिल विच कि मैं लखां नूं लत मार के सन्यासी बनिया, मैं लखां नूं लत मार के साधु बनिया। तां किसी तार्किक ने कह दिता सी, लत ढंग नाल नहीं मारी, वरना अज तक जिक्र ना कर दे। तुसी लत जरूर मारीए, फिर थोड़ी लत्तां नाल चमड़ गया, चिपक गया, तदी ते बार बार उसका जिक्र पै कर दियो। दान दा मतलब है हथों छड़ देना, फिर मुड़ के कोई पकड़ नहीं। तो महाराज कहते हैं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। इतना वड्डा दाता पहाड़ा जितना दान दे के तिल जितनी भी बदले विच तमा नहीं रखदा, मंग नहीं रखदा। ते उस दाते दे दर तो होर कौन ते की कुछ मंग रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र पौड़ी विच इंज चित्रण कीता है, केते मंगे जोध अपार जो दे सूर में महाबली।
हे प्रभु तेरे अग्गों फरियाद पै करदे न, सानू ताकत दे, मैदाने जंग दे जित प्राप्त होवे, साडी झोली दे कामयाबी पा, फतेह पा। आद काल तो सूरमे मैदाने जंग दे जाण तो पहले इस तरह की प्रार्थना करते रहे और रोज भी ये प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु हर मैदान हर दीवान फतेह होवे, कामयाबी होवे, तू ताकत दे, समर्था दे। तो महाराज कहते बेशुमार सूर में महाबली तेरे दर तो बल कामयाबी ते फतेह दी याचना कर रहे ने। कितियों गणत नहीं विचार, कितने मंगदे पए ने। महाराज कहते ने गिणती हो ही नहीं सकती। मेरी विचार दी समर्था दे ये सारे आ ही नहीं सकते जो तेरे दर ते खड़े ने ते तैथों मंगदे पए ने। और किस ढंग दियां ये मंगा मंग रहे ने। सतगुरुदेव जी महाराज ने कुछ इन्हां दा भी इस ढंग नाल जिक्र कीता है। केते खप टुटे वेकार, कईयां ने पदार्थ मंगे, जगत दा रंग रस रूप मंगया, लेकिन इन्हां च खप के रह गए। धन मिल के प्राप्त करके हंकारी हो गए, रंग रूप रस मिल के अत्यंत दर्जे दे दुराचारी हो गए, विव्यचारी हो गए। और इस तरह प्रभु दियां दित्तियां हुईयां दातां जो सुंदर काया, अरोग काया, धन ते संपदा, इनू विकारां दे खपत कीता ते इस तरीके नाल अपना शरीर तोड़ लिया, जमीर तोड़ लई ते समय नू तोड़ लिया, भाव बर्बाद कीता। तो महाराज कहंदे ने केते खप टुटे वेकार, अणगिणत ओ ने जिन्हां ने दातां मंगियां पर दातां नू जीवन बसर करन दा वसीला न समझ के विकारां दे खप गए और टुट गए, भाव रह गए। और हकीकत है कि आखिर एक दिन शरीर ही रह जाता है, जगत दे पदार्थ नहीं मुकदे, सब कुछ मौजूद रहता है, सिर्फ मनुख थक जाता है, टुट जाता है, रह जाता है। तो महाराज कह रहे ने कई इस तरह दे ने जो विकारां दे खप गए, टुट गए, मर खप गए। केते लै मुकर पाए, कई ना शुक्रे ने। तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके भी गिला करी जांदे ने, हे परमात्मा तू की दिता सानू? कुछ भी नहीं दिता, कुछ भी नहीं दिता। जो दिता है ओदा शुकराना नहीं, जो कोल नहीं है ओदे गिले कोल ने, ओदे गिले करी जा रहे ने। जैसे एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखी है कि एक सज्जन नू किसी सौदे दे 6 लाख दा मुनाफा होया है और वो होके भर रहा है ते नाल बैठे मित्र नू कह रहा है घाटा पै गया, घाटा पै गया, घाटा पै गया। ते मित्र भी अफसोस जाहिर करदा है, हाँ घाटा पै गया थानू, अफसोस है सानू, तुसी साडे मित्र हो, थानू घाटा पै गया। पर कोल बैठी पत्नी कहंदी है नहीं, वास्तविक इन्हां नू 6 लाख दा नफा होया है, पर ये जो कह रहे ने घाटा होया है, घाटा पै गया, दरअसल इन्हां ने निशाना ये बनाया सी कि इस सौदे च नफा 10 लाख दा होना है, तो 10 दा नहीं होया, 6 दा होया है। तो जो 6 दा नफा होया है इहदा धन्यवाद नहीं, जो 4 नहीं मिल सके उसदे गिले ने, उसदे हौके ने, ओदी नाशुक्री है। इस तरह दे नाशुक्रियां दे नाल समुच्चा संसार भरिया पिया। ते साहिब कहंदे ने कई ऐसे ने तरह तरह दियां दातां प्राप्त करके ते कह रहे ने साडे कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जगत विच ऐसे विरले ने जो कह देंदे ने हे प्रभु साडी पात्रता बहुत छोटी, तू बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता। भाई गुरदास जी दा ते कहना है जो नाशुकरा है, जो मुनकर हो रहा है प्रभु दी दातां तो, वो धरती दा बोझ है, इतना वड्डा बोझ है कि ओदी निगाह जिन्हों कहंदे ने फलाणे नूं नजर लग गई, ओदी निगाह भी बहुत भैड़ी है, मलीन है। ते निगाह कितनी भैड़ी है,
भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी बड़ी सुंदर। आप कहंदे ने मध विच रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास, धरिया माणक खोपड़ी तिस मंदी वास, ढक ले चली चूहड़ी कर भोग बिलास। एक चूड़ी ने कुत्ते नूं मारिया ते ओदा मांस रिन्या शराब दे च। मांस नूं रिन के उन्हें कटोरा बनाया मनुख दी खोपड़ी दा, ते उस खोपड़ी दे च मांस नूं रख के बाहरों रिन के अपने घर नूं चलीए, पर ढक के ले जा रही है। वासना बड़ी भैड़ी सी, बहुत गंदी बदबू आ रही है, जिथों लंघदी जा रही है। आखिर एक ने पूछ लिया, आख सुनाए पुछया लाए विश्वास। किसी ने पूछया ये की ढक के ले चली है? इन्नी माड़ी चीज जिदी इतनी माड़ी वासना है, उन्होंने इस तरह छुपा के ढक के ले जाण दी की लोड़ है? ते चूड़ी कहंदी है, नदरी पवे अकिरत घण मत होए विनाश। किधरे ना शुक्रे दी निगाह पै गई, किधरे रब दियां दातां तो मुनकर होण वाले दी निगाह पै गई। ये मेरे खाण लायक नहीं रहेगा, ये मेरे परिवार दे खाण जोगा नहीं रह गया। क्यों कि ना शुक्रा बंदा जिहड़ा है वो धरती दा बोझ है। कितना वड्डा बोझ है, भाई गुरदास जी ने इतना इसदा भी जिक्र कीता है। ना तिस भारे परबतां आसमान खुहंदे। जमीन दे उत्ते ना पहाड़ां दा कोई बोझ नहीं, जिन्हां दियां चोटियां फलक बोस ने, गगन चुंबी ने। ना तिस भारे सायरां नदवा वहंदे। तरह तरह दे दरिया नदी नाले ये भी धरती भार नहीं मनदी, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ आसमान खुहंदे। अणगिणत ये महल माड़ियां, ये किले जो जमीन दे उत्ते बने ने, उच्चे उच्चे मकान, धरती कह रही है इन्हां दा भी कोई मेरे उत्ते भार नहीं। ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दे संदे। ना तिस भारे जीव जंत अणगिणत फिरंदे। अणगिणत ये जिहड़े पशु ते पंखी ने ते मनुख ने, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ते धरती चीख पुकार उदों कर दिए कदों, भारे भोई अकिरत घण मंदी हूं मंदे। धरती रो पैंदी है उत्थे जिथे ना शुक्रा खड़ा है। रब दियां दातां प्राप्त कीतियां ने, शुक्र गुजारी नहीं, इनकार ही करी जांदा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उहदे पैरां हेठ पई होई धरती भी रोंदी है भी बहुत वड्डा भार है, ये मेरे उत्ते बहुत वड्डा भार पिया है। ये ते पहाड़ां नालों ते दुनिया भर दे तमाम भारी भरखम पर्वत ते होर सोना चांदी ते लोहा ते मकान, मनुख, पशु, पंखी ते बनस्पति, तरह तरह दियां धातुआं सब नालों भारू है कौन? अकिरत घण। ये ते बोझ है धरती दा। ते जो धरती दा बोझ होवेगा वो मनुखां दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ होवेगा वो समाज दा भी बोझ होवेगा। जो धरती दा बोझ है वो किसी हद तक घर दा भी बोझ है। घर दे च भी किसी ने भलाई कीती है, शुक्र नहीं, गिले ही गिले। हर थां ते इस दे गिलियां तो तनाव दा जन्म होवेगा, बाहर दे तल ते भी ते उसदे अपने मानसिक मंडल दे च भी। तो साहिब कहंदे अनेकां ऐसे ने दातां प्राप्त करके मुनकर होई जांदे ने, नाशुकरे ने। कहते मूर्ख खाई खाए। कई ऐसे मूर्ख ने जिन्हां ने अपना बस मूंह ही अगों रखिया होया है, बस खाई जांदे ने, दातां नूं वरती जांदे ने, हंडाई जांदे ने। ते दातां दे देण वाला कौन है कदी भुल के भी याद नहीं कीता, कदी भुल के भी ख्याल नहीं आया। इस पासे उन्होंने कदी अपनी रुचि ही नहीं दौड़ाई। कहते दुख भूख सद मार, एभे दात तेरी दातार। ये दो पंक्तियां गुरु नानक देव जी महाराज दियां अदुੱਤੀ ने। आप कहंदे ने दुख ते भुख ते दुख दी भुख दी मार विच जो जी रहे ने, हे सिरजनहार
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੰਬ ਦੇ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਗਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ 100 ਦੇ ਚੋਂ 90 ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੁੱਖ ਸੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੀਜਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ कि बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। मैं सदके जाना उस दुख तो हे परमात्मा जो मेरे मन विच तेरा एहसास पैदा कर देंदा है, तेरा चिंतन पैदा कर देंदा है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान अणगिणत दातां दे चों दुख ते भुख भी परमात्मा दी दित्ती हुई एक दात है। इस तो बिना मनुख जागदा नहीं, इस तो बिना मनुख सुचेत नहीं हुंदा। कई ऐसियां बिरतियां जो दुख दे धमाके नाल ही पैदा होंदियां ने, जागदियां ने, उस तो पहले उन्हां दा जागना अत्यंत कठिन है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने केतियां दुख भूख सदमार एभे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए। कोई इंज जोदड़ी पिया करदा है कि तेरी रजा दे च रह के तेरे भाणे दे विच ही बंधन टुटदे ने, मुक्ति प्राप्त होंदी है, औगणा दी जंजीर टुटदी है, जन्म ते मरण दे बंधन टुटदे ने तेरी रजा दे च, तेरे भाणे दे च। होर आख न सके कोई, होर कोई साधन ही नहीं है, होर कोई वसीला ही नहीं है। तेरी रजा दे च ही बंधन टुटदे ने, तेरे भाणे दे च ही मोक्ष दी प्राप्ति होंदी है। कोई इस ढंग दी जोदड़ी ते अरदास कर रहा है। महाराज कहंदे ने इस तो बिना अगर कोई कहंदा है कि कोई होर वसीला भी है बंधना नूं तोड़न दा, मोक्ष दी प्राप्ति दा, तां महाराज कहंदे ने ओह है खायक, खल मूरख है। जे को खायक आखण पाए, कोई खायक, कोई मूर्ख, कोई नादान ये आखे कि होर भी कई वसीले ने मोक्ष दी प्राप्ति ते, उस दी रजा दे च ना चल के भी आनंद माणिया जा सकता है, उस दे भाणे नूं तोड़ के भी सुख हासिल कीता जा सकता है। तो साहिब कहने इस तरह दा अगर कोई मूर्ख आखे तां ओह जाने जेतियां मूंह खाए, फिर ओही जानेगा जिहड़ियां उस दे मूंह दे उत्ते पैणियां ने। भाव जिहड़ी शर्मसारी उस नूं उठाणी पैणी है ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। आपे जाने आपे दे। कुछ इस तरह की भी जोदड़ी करते पे ने, वो सब कुछ आप जानदा है ते आप दे रहा है, जान के दे रहा है। ये कौन है, इसनों की देना है, ये कौन है, इसनों की देना है। एक उर्दू दे प्रसिद्ध शायर दा बड़ा सुंदर कलाम है। वो कहंदे ने किस्मत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया। बड़ी कीमती गल कहंदा है
कहता है जिहड़ा शख्स जिहड़ा जीव जिस जिस चीज दे काबिल नजर आया, जिस तरह दी उसदी झोली सी, तो उस तरह दियां दातां उन्हां दियां झोलियां विच पाईयां ने। किस्मत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। ए प्रभु, तू किसी नू कुछ दिता, किसी नू कुछ दिता, मेरी झोली विच तू गम पाया। पर उस गम चो बड़ियां सुंदर नज़मां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर रुबाइयां दा जन्म होया, उस गम चो सुंदर साहित्य दा जन्म होया। और किसी हद तक गम नू महसूस करन लई भी एहसास दा मादा चाहिदा है, और इसे ही एहसास दे मादे तो संगीत, चित्रकारी, साहित्य कला दा जन्म होया है, और अंत विच परमात्मा भी उसे हिरदे चों प्रगट होया है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि दुख प्रभु दी किसी हद तक करोपी नहीं, बख्शिश है, और उदी रजा विच रह के मोक्ष गति दी प्राप्ति होंदी है। महाराज कहंदे कोई ऐसा भी कह रहा तू सब कुछ जानना है, ते जान के दातां झोली दे च पाई जा रहे हैं, आपे जाने आपे दे आखे से बे के। इस तरह भी कोई आख रहा है तू जानदा है, तू दे रहे हैं, और जान जान के दे रहे हैं। दी झोली च की पाना है, इसदी झोली च की पाना है, आखे से बे के। इस तरह भी कई आख रहे ने, इस तरह भी तेरे अगों कई जोदड़ी कर रहे ने। पर अखीर दे सतगुरुदेव जी महाराज इस पौड़ियां दी दो पंक्तियां च कहंदे ने, जिसनू बख्शे सिफत सलाह, जेदी झोली दे च तू अपनी नाम दी दात पा देना है, सिफतो सलाह दी दात पा देना है। जेदी झोली दे च तू अपना चिंतन दे देना है, अपनी याद दे देना है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, ओ बादशाहां दा बादशाह है। ओ ते मानो सारी सृष्टि दा राजा हो गया। ओ ते बहुत उच्चे सिंघासन ते जा बिराजिया, उस उच्चे सिंघासन ते जिस दे उत्ते परमात्मा आप बैठा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तो दाता ते हे प्रभु तू हर एक दी झोली च पाईयां ने वख वख, पर सब तो वड्डी दात यह है जिहड़ा तू किसी दी झोली दे च अपनी सिफतो सलाह पा दिती है, अपना नाम दे दिता है, अपना चिंतन दे दिता है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह।